میرا سوال تاج رضوی صاحب سے ہے، لسانی اعتبار سے دوہوں پر مختصراً آپ کیا کہنا چاہیں؟ ہاں، یہ زبان کے فرق کے حساب سے، زبان کے فرق کے حساب سے جی میں اپنی گزشتہ گفتگو سے کنیکٹ کریں گے، جی مربوط کرتے ہاں ہوئے مربوط کرتے ہیں، آگے بڑھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ دوہوں میں جو اگر میزان پہ رکھا جائے تو اہمیت زیادہ مقصدیت کو مقصدیت پر ہے، اور شاعری میں، غزلوں میں یا دیگر اصناف سخن میں مقصدیت سے زیادہ اہمیت تسکین طبع جو ہے وہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. دوہے اردو میں کہنے کی کوشش کی، جب اردو میں دوہے کہیں تو ایسا لگا کہ یہ کچھ اور ہے، دوہا تو ہے ہی نہیں. یہ تو بڑا مسئلہ ہے بھائی. حالانکہ دوہے کے جو عروضی تقاضے ہیں ان عروضی تقاضوں کو میرے دوہے پورا کر رہے ہیں. ایک طویل مشق ہے غزلیہ شاعری اور مرثیہ نگاری اور رباعی گوئی کی، تو مضمون بندی کے اوپر بھی تھوڑی بہت دسترس جو اللہ نے دی ہے، مگر ان دوہوں میں میں ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہوں، کوائنٹ دوہیت نہیں تھی. تو اس میں دوہیت نہیں تھی. دوہیت کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ دوہا ایجاد ہوا ہندوستان کے سوشیو پولیٹیکو اکنامک کلچرل بیک ڈراپ، ہندوستانی چیز ہے. غزل ہندوستانی نہیں ہے، امپورٹڈ ہے. رباعی ہندوستانی نہیں ہے، امپورٹڈ ہے نا. اور وہ اپنی روایتیں لے کے آئی. دوہے کی جو روایتیں ہیں وہ ہندوستانی روایتیں ہیں، ہندوستانی مزاج ہے اس کے اندر، ہندوستانی زبان ہے اس کے اندر. تو دوہے تب تک جب تک ہندوی میں کہے جا رہے ہیں تب تک دوہے محسوس ہوتے ہیں. ہندوی زبان اور ہندوی آہنگ دوہوں کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہو تو دوہا محسوس نہیں ہوتا، آہنگ نہیں پیدا ہوتا ہے اس میں. میں نے اور غور کیا کہ یہ مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے یا اور جو دیگر دوہا گو شعراء ہم سے بہت بڑے بڑے گزرے ہیں. تو ہم نے یہ بات محسوس کی، یہ بات دیکھی کہ فارسیدہ شعراء، فارسی میں اشعار کہنے والے، انہوں نے بھی جب دوہا کہا تو ہندوی میں کہا. انہوں نے بھی دوہے کا اردوائزیشن یا پرشینائزیشن کرنے کی کوشش نہیں کی. ایسا کیوں؟ اس کی دو وجوہ کر اپنے پہلے جواب کی طرف. ایک تو یہ کہ دوہا مقصدی شاعری سے بھرا ہوا تھا، کمیونیکیٹ کرنا تھا کامن پیپل سے. تو ظاہر ہے زبان عوام الناس کی ہونی چاہیے، عام زبان ہونی چاہیے، عام فہم زبان ہونی چاہیے. اور دوہا بہت جنرک ہے ایز کمپیئر ٹو غزل. اگر آپ غزل سے موازنہ کیجیے گا تو دوہا بہت 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 زیادہ جنرک ہے. اگر دوہے کے استاد تو آپ ہی ہیں. تو اس جنرک ہونے کی وجہ سے دوہے میں آہنگ تبھی پیدا ہو پاتا ہے، اور دوہے میں جو دوہیت جس کو میں کہتا ہوں وہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب وہ ہماری بول چال کی زبان میں کہا جائے، اردو معلّہ میں نہ کہا جائے. کیونکہ اردو معلّہ میں اگر دوہا کہنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ گہج ببرا ہو جائے گا، وہ کچھ اور ہو جائے گا، وہ دوہا نہیں رہ جائے گا. اور یہ جو آہنگ ہے دوہے کا، یہ بہت نازک ہے. طبیعت اس کی بہت نازک ہے، ذرا سی اونچ نیچ اور دوہا گیا آپ کے ہاتھ سے. تو اس نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے، اور جیسے ابھی آپ نے ایک
लफ्ज की जगह बदल के और दोहे के आहंग में पैदा होने वाले फर्क को बताया और साबित किया। तो हम वजन अल्फाज भी अपनी जगह से दूसरी जगह जाने के बाद दोहे के मिजाज की नज़ाकत पे बड़ा फर्क डालते हैं। ये बात बदल के साथ या दीगर असनाफ़े सुफ़न के साथ भी है, लेकिन उतनी सादिक नहीं आती है, उतनी ज़्यादा सादिक नहीं आती है जितनी दोहों पर आती है। और ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई इस वजह से कि दोहा कहना शुरू किया। दोहा अपनी तारीख में पीछे से पीछे चली गई। दोहे ने जितना ज्यादा मुख्तलिफ मजहबी, फिक्री, नस्ली, लिसानी इफ्तिराक रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर किया है, किसी दूसरी सिलसिले में नहीं। बेशक, क्या बात है ना। दोहे ने इंसानों के दिलों को जोड़ दिया है ना, इंसानों के बीच मोहब्बत पैदा करने का काम। अनस खान साहब से मेरा सवाल है, सरसी क्या है और दोहे और सरसी में क्या फर्क है? ये बहुत अहम सवाल है। बहुत समाप्त करवाएं साहब। देखिए, मसला ये है कि सरसी की अपनी अलग एक बहर है, ये अलग छंद है और ये दोहे से मुख्तलिफ है। अच्छा। और ये अक्सर डिबेट में रहता है, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि फर्क, क्योंकि ये सवाल पैदा वहाँ से हुआ जब जमीलुद्दीन आली साहब ने दोहे कहना शुरू किए पाकिस्तान से। जी। कम से कम अगर हमें हर किसी के एफर्ट को एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए। जो भी कहा, जैसे भी कहा, लेकिन वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने मुशायरों में दोहे को और आवाम तक दोहों को पहुंचाया। उसके बाद ही फिर ये सिलसिला शुरू होता है जिसमें निदा फाजली भी आते हैं कि उन्होंने भी दोहे कहे, लेकिन ये सिलसिला शुरू उन्हीं से होता है। अच्छा, अब उसमें मसला ये था कि नाक़िदीन का कहना ये था कि वो दोहे नहीं है। अच्छा, जो हिंदी के स्कॉलर्स थे उनका भी कहना यही था कि दोहे नहीं है। तो ये बात ठीक है कि वो दोहे के करीब का एक छंद है, दोहा नहीं है। वो बिल्कुल, अब उसको मैं समझाने के लिए बहुत आसान, तो एक कतील शिफाई का बहुत मशहूर गीत है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो ये उसी बहर में है, ठीक है। तो हाँ, तो इसको ये बहर मीर जो हम कहते हैं, मुतकारिब, तो ये वही बहर है। तो इसमें क्या है कि बीच में फाइलून का बाट नहीं है, फैलून है, तो वो उतार चढ़ाव नहीं होता है और आप जो है इसमें बिल्कुल सीधे रवानी से चले जाते हैं। तो सरसी का मामला ये है कि दोहा नहीं है सरसी, दोहा सरसी से मुख्तलिफ है। तो थोड़ा सा दोहे के औज़ान जो है वो भी एक थोड़ा सा औज़ान के एतबार से दोहे के, तो औज़ान की अगर दोहे की बात करें तो दोहे की कोई एक बहर नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर भी डिबेट है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाँ, ये मुतकारिब की एक शाख है, वो काला फ़ौलुन फ़ाइलुन ये दोहा है। लेकिन बहुत सारे अगर हम असातिज़ा के दोहे उठाएंगे तो ये नहीं दिखेगा आपको ये बहर उस पर आती हुई। जैसे मिसाल के तौर पे वो दोहा है कबीर का कि माटी कहे कुम्हार से, तो क्या बोलते हो, अब माटी कहे कुम्हार से कैसे आएगा काला फ़ौलुन फ़ाइलुन पे, तो ये रद्द हो जाता है। तो अब जो है बहुत उर्दू की तरफ अगर हम दोहे देखेंगे तो ज्यादातर दोहे हमें मिलेंगे फैलून फैलून फाइलून फैलून फैलून फा के ऊपर। तो इसी तरह से दोहे के मुख्तलिफ हैं और मेरा अपना मानना यह है कि पूरे मिसरे की कोई एक बहर नहीं होती, टुकड़ों की बहर। तो उसके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सौइयों कॉम्बिनेशन बनते हैं जी। तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि मुकम्मल मिसरे की ये बहर है। तो हाँ, ये कर सकते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए हमने कुछ बहरे बना ली कि फाला फ़ौलुन फ़ाइलुन फाला फ़ौलुन फा, फैलुन फैलुन फ़ाइलुन फैलुन फैलुन फा। अब वो फाला फ़ौलुन फ़ाइलुन फिर फैलुन फैलुन फा भी कर सकते हैं। रुबाई जैसी थोड़ी कैफियत है, जैसे रुबाई में 18 बहरें हैं और उन 18 बहरों में से ये, और मेरे ख्याल से इस बात को मान लेने में कोई मुजाहरा नहीं है।
इस पे ये रिसर्च का मौजूद है, ये इस पे रिसर्च का रिसर्च मौजूद होना है और चाहिए। इस पर रिसर्च होना चाहिए कि जैसे रुबाई की 18 बहनें हैं, जी है ना, और 4 मिसरे, उन 18 में से किन्हीं 4 किन्हीं बहनों 4 में बहनों से- में से। हाँ, बहुत करीब है उसके। जी तो यही कानून मेरे ख्याल से नाफिज हो सकता है दोनों पर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कहाँ फैलून पायलून है, नहीं है ना, तो कोई स्टैंडर्ड पहर वहाँ पे नहीं है। बहुत वो सारे 13-11 वाला जो है मात्राओं वाला वो नहीं, मानता है। 13-11 मात्रा का देखिए मसला, 13-11 मात्रा में खराबी यहाँ पैदा होती है कि हर 13-11 मात्रा दोहा नहीं होता और हर दोहा 13-11 मात्रा 13-11 होती मात्रा है। नहीं होती। ये मात्रा कोई बहर नहीं डिफाइन कर रही, मात्रा कहाँ डिफाइन कर रही है बहर? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो दोहा निगारों के समझने के लिए, खास करके वो लोग कि जो नए हैं और दोहा निगारी में कदम रख रहे हैं, जी। उनके लिए इस बात का समझना जरूरी है।